वक्त की रफ्तार के साथ रिश्तों का खून हो रहा है। यहाँ तक कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते भी दागदार हो रहे हैं। पंजाब के जिला फंजिका के गांव ढींगवाली में सगे चाचा ताऊ के लड़के लड़की ने रिश्तों की परवाह किए बिना ही जो कदम उठाया, वही कदम उनकी मौत का कारण बन गया। इश्क के चक्कर में दोनों अपने भाई बहन के रिश्ते को भी भूल गए और इश्क के समंदर में डुबकी लगा दी। 21 वर्षीय सुनील कुमार और 19 वर्षीय पार्वती नायक समाज से संबंध रखते थे। दोनों परिवारों का घर एक ही गली में नजदीक था। दोनों के बीच हंसी मजाक और बड़ा प्यार हो गया। वहीं दोनों के इस संबंध पर किसी को भी कोई शक नहीं था। दोनों के पनपे प्यार ने उनके असल रिश्तों पर भी पर्दा डाल दिया था। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ, ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਪ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੋਇਜ਼ਨ ਵੀ ਪਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਪਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ 2 ਸੈੱਟ ਪਏ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਾਰਾ ਉਪਾੜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਢਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਬਹਾਵਾਲੇ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ 22-23 ਸਾਲ। ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਪਾਰਵਤੀ, ਇਹਦੀ 18-19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1-1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਡ੍ਰਿਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਪਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੀ 2 ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜਾਪਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਸਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ। सदर कोतवाली क्षेत्र के मधुबन गांव में दलित नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला 13 जून की देर रात का है। पीड़िता के अनुसार जब वह रात में अपने कच्चे मकान में सो रही थी तो गांव के ही 2 दबंग युवकों ने उसका मुंह दबाकर अगवा कर लिया था और घर से कुछ ही दूर सिवान में खेतों के बीच ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए खेत की तरफ पहुँचे तो उन्हें बेहोशी की हालत में अपनी लड़की मिली। इस दौरान उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 24 घंटे के बाद पीड़िता को होश आया। पीड़िता के होश में आने पर परिजनों को घटनाक्रम का पता चला। पीड़िता का कहना था कि दबंगों ने धमकी भी दी है कि अगर उसने पुलिस को कुछ बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। 12 बजे करा के हम सो रहे अपने घर मच्छरदानी में। हमारे साथ हमारे दादी सुते रहे हैं। हमके 12 बजे रात के उठा के ले जा कर के पश्चिम हमके जी भी कैले हैं। हम हाँ, एक पन्ना, एगो इनका नाम हटे तू घूरे, 2गो नाम है उसे बोलावे न जाए, भूखालू घूरे। एक जानी का नाम है पन्ना। हाँ, दूलू है। हमारे बाबू का बहिया का जान मारे क थे। हाँ, पश्चिम खेते में।
चचा बहुत बरियारी कोयले से हमके छोड़ना को ना तो हमार जान मार दिले रहता को। हाँ क्या मामला है, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? ये आज एक शिकायत आई थी कि एक जो लड़की है उसके पिता ने शिकायत करी थी कि 13 की रात को दो गांव के युवक ने इनको ले जाके इनके साथ दुष्कर्म किया। इसमें आज ये तहरीर लेके हमारे पास आए हैं। उसमें हमने एफआईआर लॉन्च कर ली है। जो जिनके नाम बताए गए उनके खिलाफ एक टीम गठित की गई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। आगे विवेचना सीओ सदर के द्वारा की जाएगी। इसमें कौन लोग थे? गांव के ही लोग थे? कितने लोग थे उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है? जो तहरीर मिली है उसके हिसाब से गांव के ही 2 लोग के नाम प्रकाश में आए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाएगा और विवेचना का योग्य निस्तारण किया जाएगा। सर, इनको बताया जा रहा है कि शायद लड़की नाबालिग है, ऐसा कुछ जानकारी? हाँ, आवेदक के अनुसार लड़की नाबालिग है तो इसमें पोस्को की धाराएं भी ऐड की गई है। यूपी के जनपद हापुड़ के थाना देहात के NH 24 पर दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर बीड़ी व्यापारी से लाखों रुपए की लूट की है। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए। लूट की घटनाओं को रोकने में नाकाम हापुड़ पुलिस को ये लूट की घटना संदिग्ध लग रही है। जैसे अब पैसे लेकर आ रही थी जी, तो वहाँ गए जी, थोड़ी सी मंदी गाड़ी में जी, और 3 बदमाश थे जी। उन्होंने आगे किस पे थे वो? गाड़ी कौन सी थी? मोटरसाइकिल थी जी। अच्छा, तो क्या हुआ आपके साथ फिर? उन्होंने सामने लगा दी सही जी और आकर जो है कट्टा लगा दिया जी और जो गोली मार देंगे। तो हथियारों के बल पर लूट हुई है आपके साथ। कितने रुपए होंगे उसमें करीब जोड़ रहे हैं सर। हाँ, कितने होंगे अंदाजा? 1 के आसपास। 1 के आसपास। कितने लोग थे आप? 3 लोग। देखिए, ड्राइवर बता रहा है कि 2 मोटरसाइकिल वाले आए, यहाँ पर जो है गाड़ी के आगे लगा दिए और लगभग 1 लाख रुपया जो है हमारा लूट करके लेके गए। लेकिन अब तक ये सही ढंग से हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ 3-4 लोग हैं इनसे सटे हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि गाड़ी आकर के रोका है और कोई मोटरसाइकिल नहीं आई, कुछ नहीं आया। और मज़े की बात यह है कि चाबी इनसे जब लिया, चाबी ले जाकर किसी ऑटो वाले को दे दिया इनकी चाबी, फिर ये ऑटो वाले से अपनी चाबी ले आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मामला जो है दिखाई दे रहा है, संदिग्ध है। जिले में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आगामी 18 जून को चुनार इलाके के शिव शंकरी धाम में होने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। सभा स्थल पर दिन रात मंच बनाने का काम चल रहा है। मंच और बैरिकेडिंग के साथ साथ सुरक्षा के लिए चारों तरफ बल्लियों के सहारे सभा स्थल की घेराबंदी की जा रही है। वहीं JDU कार्यकर्ताओं की देखरेख में मंच का निर्माण किया जा रहा है। ये 18 जून को मिर्जापुर मंडल की जनता दल यूनाइटेड की कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संबोधित करेंगे। उनके साथ राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष शरद यादव जी और हमारे प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी और बिहार से राज्यसभा के सदस्य श्री RCP सिंह जी, जो बिहार उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उनके साथ तमाम देश और प्रदेश के नेता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में मिर्जापुर मंडल के 15,000 कार्यकर्ता के लगभग आने का हमारा संभावना है और यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा को बदलने का शुभारंभ होगा। इस रैली के माध्यम से विधानसभा का ही नहीं, आगे की राजनीति का भी संभावनाएं तलाशेंगे। और जिस दिन से नीतीश कुमार जी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हुई है, यहाँ की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है और लोग उनकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के साथ तमाम प्रदेशों में लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे जैसे उनका कारवा आगे बढ़ेगा, हमारे देश की राजनीति बदलती चली जाएगी। मुद्दा तो न्याय के साथ विकास और बिहार मॉडल सुशासन
जो उन्होंने बिहार में दिया है, जिस तरह से वहाँ में बिहार में आम आदमी खुशहाल है, ख़ासतौर से किसान और महिलाएं वहाँ पर खुशहाल हैं, और जो शराबबंदी का उन्होंने मुद्दा वहाँ पर बिहार में दिया है, जिससे पूरे बिहार की महिलाओं में एक अभूतपूर्व बदलाव आया है, तो लोग हमसे चुनौती लेंगे। देखिए, किसी भी पार्टी का या किसी भी नेतृत्व के साथ जो एक वोट बैंक जुड़ता है वो महज चंद दिनों की बात नहीं होती है। ये एक लंबा संघर्ष होता है जो उसके पीछे छिपा होता है। लोगों की भावनाएं होती हैं जो साल दर साल संघर्ष के बाद जुड़ती हैं। अपना दल का अपना एक वोट बैंक है और ये पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सालों के संघर्ष का परिणाम है। और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है, तब भी हम लगातार लोगों के बीच उनकी समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे में लोगों का जो हमसे एक जुड़ाव है वो बना हुआ है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति के अचानक आ जाने से जो हमारी पार्टी और वोटर के बीच का रिश्ता है उस पर कहीं से किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के महरनिया इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की 3 थानों की टीम ने 2 घरों में छापा मारा। छापे के दौरान दोनों घरों में से 5 पेटी शराब बरामद हुई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को देखकर शराब बनाने वाले व्यक्ति वहीं इस मामले में पुलिस शराब को नष्ट करके जाँच में जुट गई है। मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि महरनिया इलाके में घरों में अवैध तरीके से शराब बनाने व बेचने का कार्य किया जा रहा है। इसी सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर लगभग 20,000 रुपए की शराब बरामद की है। सूचना मिली थी कि कुछ लोग आटा चक्की में अवैध शराब की बिक्री करते हैं। नीचे हाउस बनाकर चेकिंग की गई तो 2 दुकानों से और घरों से करीब 6 पेटी शराब की बरामदगी की गई है। आगे कार्रवाई की जा रही है। 15 से 20,000। भटिंडा में किसानों की मौत का सिलसिला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आज भटिंडा के मिनी सचिवालय के बाहर 19 दिनों से अपनी मांगों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते एक किसान की अचानक मौत हो जाने से सभी किसानों में मातम का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक किसान की उम्र करीब 75 साल है, जो कि गाँव डोडरा का वासी बताया जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक किसानों का हाल जानने के लिए धरना स्थल पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचा है, जिसके चलते किसानों की यूनियन में काफी रोष देखने को मिल रहा है। पांच तरीक तो जी दुनिया वाले नाल थी उरे ਉਹਦੇ ਦਾ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਧਰਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਤ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਮਰ ਉਹਦੀ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਰਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸੁਬਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਫੋਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਉਰੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਰਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੋਦਲਾ। ਰਾਤ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 1 ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਤੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। कैथल में पिछले 4 दिनों से चली आ रही नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। आज सुबह सभी कर्मियों ने नगर पालिका में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। प्रशासन ने पहल करते हुए नगर कर्मियों के नेताओं को बातचीत करने के लिए बुलाया, जो पूरी तरह सफल रही। कर्मचारियों को उनका पिछला बकाया वेतन जल्द दे दिया जाएगा और इनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी।
अब 3 बजे जी सभी कर्मचारी आ रहे हैं और 3 बजे सब सारा काम संपूर्ण रूप से एकदम से वैसे सफाई व्यवस्था की जाएगी। तो आपकी मांगे मानने की कि कैसे रहेंगे? मांगे मान लीजिए, कुछ मांगे रह चुकी है वो बाद में होगी और लिखित रूप में हमसे समझौता है जी। जो सफाई व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, अब हमारा विश्वास है कि जितने भी कर्मचारी हैं जो भी इतवार को भी मतलब ड्यूटियों पर आएंगे और 1-2 दिन के अंदर सारा का सारा वैसे ही सफाई व्यवस्था ठीक होगी। ऐसा हमारा लगभग 4 दिन से सामूहिक अवकाश लेकर के हमने हड़ताल की थी और हड़ताल के दौरान हमने धरना दिया था। इस दौरान हमारी 5 प्रमुख मांगे थी। सबसे पहले हमारी मांग थी भी हर माह की 7 तारीख से पहले वेतन मिले और लगभग हमारा 450-500 के करीब कर्मचारी हैं। उसमें सफाई कर्मचारी, दफ्तर का, आउटसोर्सिंग और माड़ी, बेलदार, अग्निशमन का तमाम कर्मचारियों का लगभग 3 महीने से बकाया वेतन था। लेकिन और दूसरी हमारी मांग थी जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनका लगभग 3 साल से EPF का बकाया उनके खातों में जमा कराना, झाड़ू भत्ता 2 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये करना, ये हमारी मांग थी। लेकिन आज प्रशासन ने चौथे दिन प्रशासन का शिष्टमंडल हमारे बीच आया, उसमें AO, ME और चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने हमारी मांगों के ऊपर लिखित में समझौता किया। उसमें सभी कर्मचारियों का 2 महीने का बकाया वेतन देना और लगभग जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनका EPF का उनके खातों में जमा कराना, ये प्रमुख मांगे हमारी मान ली गई है। और आज हमने इनको भी आश्वासन दिया और आश्वासन के ऊपर अपना धरना उठा लिया है। साथ में वेतन आयोग की रिपोर्ट में रेलवे कर्मचारियों की प्रतिकूल सिफारिशों और वेतन विसंगतियों समेत पेंशन नीति, भत्तों में वृद्धि और एरियल का भुगतान, वेतन वृद्धि जैसी 11 मांगों को लेकर रेलवे कर्मचारी यूनियन ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि रेलवे यूनियन ने इससे पहले केंद्र सरकार से बातचीत के बाद 11 अप्रैल की हड़ताल को स्थगित किया था। हमारा रेल सरकार रेल कर्मचारियों की तरफ से 11 जुलाई को अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी गई है, जिसके लिए हमने सभी इंडिया लेवल पर सभी महाप्रबंधक को 9 जून को स्ट्राइक नोटिस दे चुके हैं। स्ट्राइक नोटिस 1947 लेबर एक्ट अनुच्छेद 2 धारा 1 के अनुसार 1 महीने पहले अपने नियोक्ता को दी जाती है, जो प्रक्रिया हमने पूरा कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग हर जगह जनसंपर्क कर रहे हैं, पूरे जोन में, पूरे इंडिया में सभी यूनियन के, ट्रेड यूनियन के लीडर घूम कर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। हमारी डिमांड्स, साथ में वेतन आयोग की विसंगति को दूर कर नए ढंग से वेतन आयोग दिया जाए और जल्दी दिया जाए, क्योंकि 1/1/2016 तक इसका टाइम था और गवर्नमेंट ने अपनी गलत नीति का अख्तियार करके और इसमें ज़बरदस्ती इसको टाइम देकर पहले ही 7वें महीना 2015 के बाद दिसंबर तक दिया। दिसंबर के बाद आज फिर पूरे 1 साल होने जा रहे हैं, पे कमीशन लागू नहीं हुआ है। इसके अलावा NPS मांगे हैं कि नॉन पेंशन स्कीम जो लाया गया है, जिसमें लोगों को पेंशन बंद कर दिया कर्मचारियों को, वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए। जिस तरह डिफेंस पर ये लागू नहीं होता है, उसी तरह रेलवे में ये डिफेंस की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसमें भी नॉन पेंशन स्कीम लागू नहीं होना चाहिए। नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर दिए जा रहे नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई हिसार का अनिश्चितकालीन धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन के प्रति रोष प्रकट करते हुए नारेबाजी करते हुए उनकी मांगे पूरी करने की आवाज उठाई। धरने की अध्यक्षता इकाई उप प्रधान सुनील कांगड़ा ने की। धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रहा है और उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धरने के 4 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सभी मांगे जायज हैं, जो लंबे
लंबे समय से लंबित है। बार बार कर्मचारियों द्वारा शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन के बावजूद कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। यदि समय रहते प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती धरना जारी रहेगा। आज इस धरने का 5वां दिन है। जो प्रशासनिक तौर पर जिन व्यक्तियों ने काम करना चाहिए था वो तेजी से कर नहीं रहे। एसीपी की बातें पिछले 1.5 साल से लटकाए रखा है। कोई ना कोई बहाना कर इसे बंद कर 20 बार मौखिक रूप से लिखित रूप से समझौते हुए जो आज तक उसको लागू नहीं कर पाए। और एक कोर्ट से केस जीता हुआ 4 साल का जो हमारा एसीपी का था उसका एरियल नहीं बनाया आज तक। यहाँ का जो प्रशासन है, जो काम करने वाले व्यक्ति है वो काम नहीं कर पा रहे। किसी भी माड़ी बेलदार ये जो फोर्थ क्लास का जो मसला है इन पर ध्यान नहीं दे रहे। बाकी दफ्तर वालों ने अपनी एसीपी पिछले 1 साल से लगाए रखी है और हमारी आज तक नहीं। ये 2002 में जो लेटर आया था मर गए खप गए ये जो रिटायर हो गए उनके साथ भी भेदभाव रखा इन्होंने और आज तक उनकी बात नहीं सुनी गई। और अभी तक किसी भी व्यक्ति को, और हमारा ये कहना है कि जब तक अब की बार नहीं लगाएंगे तब तक ये धरना यूँ का यूँ जारी रहेगा, चाहे कोई आए कोई जाए। डीएम संभल NKS चौहान ने जिले के सरकारी महकमों में अफसरों और कर्मचारियों के जीन्स और शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर पाबंदी का लिखित फरमान जारी किया है। डीएम ने अपने फरमान में गुटखा पान तंबाकू का सेवन करने वाले जिले के सरकारी महकमों के अफसरों और कर्मचारियों पर भी शिकंजा कस दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले सरकारी अफसरों कर्मचारियों को 500 रुपए का जुर्माना भरने के साथ ही विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जिले के ADM, SDM और तहसीलदारों से आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है। डीएम के फरमान से जिले के सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। आदेश अखबारों में भी आ गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी ऑफिस टाइम पर हमेशा प्रॉपर ड्रेस में आएगा, जीन्स साथ पहन नहीं आएंगे। कार्यालय टाइम में और कार्यालय में कोई पान गुटखा तंबाकू आदि का सेवन नहीं करेगा। ये पहले से भी ये आदेश ऑलरेडी हैं कि सार्वजनिक स्थान पर कोई तंबाकू आदि का सेवन नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ देखा गया कि कुछ लोग इसका प्रयोग कर रहे थे, कुछ लोग जीन्स पहन के आते थे। इसी पर प्रतिबंध लगाया गया है कि कार्यालय टाइम पर कोई भी जीन्स आदि का प्रयोग नहीं करेगा, कोई गुटखा पान तंबाकू का सेवन नहीं करेगा। क्या इसमें किसी जुर्माने का प्रावधान किया गया है? हाँ, जुर्माना 500 रुपये का प्रावधान किया गया है। वैसे अधिनियम में भी है कि कोई रेलवे में, बस में, कहीं सार्वजनिक स्थान पर अगर बीड़ी और इसका सेवन करता मिलता है तो संबंधित अधिकारी जिस विभाग का है, जहाँ सार्वजनिक स्थल है, वहीं का अधिकारी उन पर जुर्माना कर सकता है। क्योंकि